ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر غور و خوض اور منظوری کے لیے بحث جاری۔ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی میں خواتین کے لیے 33% سیٹوں کی ریزرویشن کی گنجائش۔ سکاسٹ جموں کے 25ویں یوم تاسیس کی تقریب کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا افتتاح۔ یونیورسٹی کے سائنسدانوں اور دیگر عملے پر نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ملک اور جموں کشمیر کے مستقبل کو زراعت کے حوالے سے تابناک بنانے پر دیا زور۔ جموں کشمیر امن و استحکام اور تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن۔ آر بٹناگر کہا ہے سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ نئے کاروبار کے قیام کے طور پر ابھر رہا ہے، اور وادی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے جمعہ کی تقریبات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا صوبائی کمیشن کشمیر نے لیا جائزہ۔ زائرین کو ہر ممکن سہولت بہم رکھنے کی افسران سے کی تاکید۔ خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر غور و خوض اور منظوری کے لیے بحث جاری ہے۔ مذکورہ بل کی روح سے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1 تہائی سیٹوں کی ریزرویشن کی گنجائش ہے۔ قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں لوک سبھا کی کارروائی کے کل پہلے دن آئین میں مزید ترمیم کے لیے آئین کا 128واں ترمیمی بل 2023 پیش کیا۔ مذکورہ بل کو ناری شکتی وندھن ادھی نیم کہا جائے گا۔ قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے مذکورہ بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے اور اس سے مختلف موقعوں کی برابری کو یقینی بنا کر ان کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار نے خواتین کے لیے برابری کو یقینی بناتے ہوئے کئی اسکیمیں نافذ کر کے ملک میں سماجی اور معاشی نابرابری ہٹانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کی سرکردہ لیڈر سونیا گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی مذکورہ بل کی حمایت کرتی ہے۔ بھارتی خواتین کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کا ضبط و تحمل سمندر کی طرح ہے اور وہ ایک دریا کی مانند ہر ایک کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے ارکان پر زور دیا تھا کہ وہ خواتین کے لیے مواقع کے راستے کھول دیں۔ انہوں نے کہا کہ ناری شکتی وندھن ادھی نیم سے بھارتی جمہوریت مزید مستحکم ہوگی۔ چندریان 3 کے چاند کی سطح پر کامیابی کے ساتھ اترنے کے تناظر میں آج راجیہ سبھا میں بھارت کے شاندار خلائی سفر پر مباحثہ شروع ہوا۔ آج صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ تاریخ میں بھارت ایسا چوتھا ملک ہے جس نے کامیابی کے ساتھ چاند پر اسپیس کرافٹ اتارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایسا پہلا ملک ہے جس نے چاند کے قطب جنوبی پر اسپیس کرافٹ اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ چندریان، منگلیان مشن اور اسرو کے شمسی مشن آدتیہ L1 کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی مقصد بعید نہیں ہے اور یہ صرف ایک شروعات ہے۔ دھنکڑ نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف اپنا سیٹلائٹ چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے بلکہ اس نے دیگر ملکوں کے سیٹلائٹس خلا میں چھوڑنے کے لیے اپنی خدمات بھی فراہم کی ہیں۔ دھنکڑ نے کہا کہ بھارت نے اب تک 424 غیر ملکی سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں اور ان میں سے 90% گزشتہ 9 سال میں چھوڑے گئے۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر پیوش گوئل نے کہا کہ اسرو نے چندریان 3 کو چاند کی سطح پر کامیابی کے ساتھ اتار کر ملک کا نام روشن کیا ہے اور سبھی لوگوں کو اس پر فخر ہے۔ سکاسٹ جموں نے آج اپنا 25واں یوم تاسیس منایا۔ اس سلسلے میں سلور جوبلی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا، جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر BN ترپاٹھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب کے دوران کئی بنیادی سہولیات کا افتتاح کیا گیا، جن میں کمیونٹی پارک، کئی نئی عمارات، تصانیف کا اجرا اور پورٹل شروع کرنا شامل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے تقریب پر بولتے ہوئے یونیورسٹی عملے کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یونیورسٹی کی جانب سے آرٹ اور سائنس کے حوالے سے حصولیابیوں اور G20 کے تعلق سے منعقد کیے گئے پروگراموں کے لیے عملے کی سراہنا کی۔ انہوں نے یونیورسٹی کے سائنسدانوں اور دیگر عملے پر زور دیا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جموں کشمیر اور ملک کا زراعت کے حوالے سے مستقبل تابناک بنائیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کی 70% آبادی زراعت اور اس سے منسلک شعبوں سے وابستہ ہے، اس لیے زراعت سے جڑے سائنسدانوں کو ماحول موافق طریقہ کار اپنانا چاہیے اور کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی سے روح شناس کرایا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے کہا کہ جموں کشمیر امن و استحکام، تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور یہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ نئے کاروبار کے قیام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مشیر نے ان خیالات کا اظہار آج KICC سری نگر میں انڈیا کولڈ چین کانکلیو ہمالین چیپٹر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
अपनी नौयत के इस पहले कॉन्क्लेव का एहतमाम मरकजी सरकार के महकमे ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट की इत्तलाक से किया था। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, महकमे ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद की जॉइंट सेक्रेटरी प्रिया रंजन वर्मा, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर, चेयरमैन PhD CCI कश्मीर और दीगर मुतल्लिक अफसर मौजूद थे। कॉन्क्लेव में J&K फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एसोसिएशन, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के नुमाइंदों, ज़रूरी माहिरीन और साइंसदानों के अलावा ग्रोवरों और एंटरप्रेन्योरों ने भी शिरकत की। मुशीर मौसम ने कहा कि इस कॉन्क्लेव से जम्मू कश्मीर में मकामी एंटरप्रेन्योरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें वादी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके बाद की जुम्मा की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में अनंतनाग, बडगाम और बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नरों के अलावा ADC श्रीनगर, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, बिजली, सेहत आमा, SMC और फूड एंड सिविल सप्लाईज के महकमों के अफसरों ने भी शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए सूबाई कमिश्नर ने तमाम अफसरों को हिदायत दी कि वो आसार शरीफ हजरत बल जनाब साहब सुबरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, अहम शरीफ बांडीपुरा, काबा मर्ग अनंतनाग समेत तमाम बड़े ज़ियारत गाहों पर मियारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। मौसूफ ने अफसरों से कहा कि अवाम बिलखुसूस ज़ियारत गाहों पर जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत की खातिर माकूल इंतजाम किए जाएं। उन्होंने ज़ियारत गाहों बिलखुसूस दरगाह हजरत बल श्रीनगर में सफाई सुथराई, हेल्थ कैंप के क़याम, सड़कों की तजदीद व मरम्मत, पीने के पानी के टैंकरों की दस्तयाबी, बिला खलल बिजली की फराहमी और दीगर सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नरों और दीगर अफसरों ने भी अपने मुतल्लिका जिलों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के हवाले से किए जा रहे इंतजाम के बारे में सूबाई कमिश्नर को जानकारी फराहम की। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की जानिब से हिंदी सप्ताह की तकरीब आज केंद्र में इख्तिताम पजीर हुई। हिंदी सप्ताह का इफ्तिताह 14 सितंबर को कौमी हिंदी दिवस के मौके पर DIG BSF SS चंडेल ने किया था। हिंदी सप्ताह के दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया गया। आज इख्तितामी तकरीब पर केंद्र के सरबरा और DDG इंजीनियरिंग S संजीव की क़यादत में प्रोग्राम सरबरा राबिया रसूल, न्यूज़ एडिटर शब्बीर अहमद डार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कौल ने फातिहिन में इनामात तकसीम किए और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर केंद्र के सरबरा S संजीव ने काम करने की जगहों पर राजभाषा की ज़रूरत पर जोर देते हुए अपनी टीम से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दफ्तरी कामकाज के दौरान हिंदी को सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इख्तितामी तकरीब पर ऑर्गेनाइजर और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग PK त्रिपाठी ने अफसरों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। विमेंस कॉलेज MA रोड श्रीनगर ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आज एक रोज़ा साइंस इवेंट का एहतमाम किया। तकरीब में मरीजों के इलाज मुआलजे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के रोल के दो वसी मौजूओं पर बहस की गई, जिसमें श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। तकरीब पर कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने फातिह तलबा को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल रूही जान ने साइंस इवेंट के वसी खद्दोखाल को उजागर किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के एहतमाम से आज कॉलेज के कैंपस में एक रोज़ा मीडिया फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में कश्मीर और दीगर रियासतों के मीडिया इदारों और आज़ाद मीडिया पेशेवरों ने शिरकत की। अपने इफ्तिताई खुतबे में शोबे मीडिया स्टडीज़ के सरबरा डॉक्टर दानिश नबी ने तमाम मेहमानों और शरीक तलबा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मीडिया फेस्टिवल का मकसद पेशेवराना मल्टी मीडिया तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था ताकि वो मीडिया पेशेवरों और जूरी के सामने अपने काम की नुमाइश कर सकें। सियाहत को बढ़ावा देने के लिए जिला इंतजामिया बारामूला ने लधु लाडूरा अरफी आबाद में गरमाई सियाहती फेस्टिवल का एहतमाम किया। फेस्टिवल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने किया। इस मौके पर भारी तादाद में मौजूद लोगों के साथ साथ तालिब इल्मों की खासी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान तालिब इल्मों और कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब पर बोलते हुए कहा कि इलाका सियाहती एतबार से माला माल है, जिसे फ़रोग देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल मुनक़िद करने का मकसद इलाके की सियाहत को बढ़ावा देना है ताकि यहाँ के लोगों की माशी हालत भी बेहतर हो सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी रोज़ अव्वल से ही साफ व शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात की पाबंद रही है और इलेक्शन को ही जमहूरियत की बुनियाद समझकर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आई है और पार्टी आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कमर बस्ता है। इन बातों का इज़हार पार्टी नायब सदर ने आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन में जम्मू की पार्टी सीनियर लीडरान और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। अपनी पार्टी का एक रोज़ा कन्वेंशन आज पदगामपुरा पुलवामा में मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक नहीं दिया जा रहा है, जो जमहूरियत के बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर में बगैर किसी ताखिर के चुनाव कराने चाहिए ताकि यहाँ के अवाम को इस बात पर यकीन हो कि जम्मू कश्मीर में भी जमहूरियत कायम है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का सिलसिला जारी है, जिनके जरिए लोगों तक इस हवाले से जानकारी फराहम की जा रही है। खेल कूद महकमा भी इस हवाले से अपनी तकरीबात का सिलसिला जारी रखे हुए है। महकमे की जानिब से खवातीन, बुजुर्ग और खासतौर से बच्चों को जानकारी फराहम करके मेरी माटी मेरा देश की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। तकरीबात का एहतमाम देहात सतह से लेकर ब्लॉक सतह और फिर यूटी सतह तक किया जा रहा है। महकमे खेल कूद के जॉइंट डायरेक्टर वसीम राजा ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि महकमा इस हवाले से अपनी सरगर्मियां शद्दोमद से जारी रखे हुए है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो छोटे बच्चों का है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो कैटर करता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को अप टू द एज ऑफ 19। तो हमें जो है ये ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई बिकॉज हम अपने एम्बेसडर्स जो हैं इस कैंपेन के लिए जो है इन छोटे बच्चों को मानते हैं, और उसी सिलसिले में जो है हमने कोशिश की कि हम इन एक्टिविटीज़ को जो है इंटीग्रेट करें। और जो शेड्यूल गवर्नमेंट का हमें आया हुआ है मेरी माटी मेरा देश के रिलेटेड, हमने कोशिश की है कि अब इसको हम अपनी एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेट करें। सो फार एज कश्मीर डिवीजन इज कंसर्न, हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है शेड्यूल अपने एक्टिविटीज़ का देखते हैं और हर एक शेड्यूल में जो है हमने मेरी माटी मेरा देश को इंक्लूड किया है विद स्पेशल जो हमने फोकस रखा हुआ है वो छोटे बच्चों का रखा है। वुमेन के लिए जो है ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हमने स्पेशली डिज़ाइंड और डिवाइस किए हुए हैं ताकि लोग जो हैं हाउस होल्ड वुमेन को जो है इसी बहाने इंक्लूड करें। ओल्ड एज पीपल को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। पैरा जो स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्समैन जो हैं वो जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इन सब बुलंदपाया वली कामिल हज़रत ख्वाजा सईद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक आज वस्त एशिया और बर सग़ीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाही नक्शबंद वाक़ ख्वाजा बाजार श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहाँ हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने खुज्जा दिगर में शिरकत की। इससे कबल आस्तान आलिया पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस में भी मुनाकिद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इस मौके पर उलमाए किराम ने हज़रत ख्वाजा नक्शबंद की इल्मी और रूहानी कमालत पर रोशनी डाली। जमीयत हमदानी के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर मजहबी व सियासी लीडरों ने उर्स मुबारक के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। लड़कियों के 17 और 19 साल से कम उम्र के जुमरे के तहत जिला सतह का 4 रोज़ा बैन स्कूल क्रिकेट सिलेक्शन ट्रायल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोगजीबाग श्रीनगर में जारी है। 18 सितंबर को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट कल इख्तिताम पजीर होगा। इसका एहतमाम महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जिला श्रीनगर ने मेरी माटी मेरा देश और स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत किया है। इस क्रिकेट सिलेक्शन ट्रायल में श्रीनगर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों की 18 टीमें शिरकत कर रही हैं। बडगाम स्पोर्ट्स डे में आज क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। इफ्तिताई तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल कूद मनुष्यात की बिद्दत का कलाकामा करने के लिए एक बेहतरीन आला है और मौजूदा दौर में ऐसे टूर्नामेंटों का इनेकाद जरूरी है। तकरीब पर बोलते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा कि खेल सरगर्मियों में नौजवानों की शमूलियत वक्त की जरूरत है और माशरे से मनुष्यात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए ये एक मजबूत पहल है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।